Assalamu alaikum everyone. This is the lab of artificial intelligence today on Saturday 7th August. काइंडली कंफर्म कर दें अली हैदर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अब तक? Still waiting for the response. If my voice is clear or not. Let me write a text. If my voice is not clear, then obviously you would not be able to hear my question. Alright, let's start. Let me share the screen with you. Hopefully the screen is visible now. So in last lab we started working on some of the rules I had given as a task for the students as well, and there are lesser students in class today. Probably that wasn't the case के जिनको मैंने समझाया था वो students I think आज class में नज़र नहीं आ रहे. I will still move forward because of the lack of time. We would not be able to keep these things on hold. So let's start where we left off. We were working on this specific thing. ये हम काम कर रहे थे और हमने ये कहा था कि reads Ahmad newspaper, reads Ali books, and we ended on writing two of the rules. One rule read as X is educated if X reads something. Y can be anything. Excuse me. So and the other rule was X is a master if X reads something and X writes. इसमें हमने बात जो है वो डिटेल में बात की थी कि why are we using Y here and Z here? Why can't we use Y here and Y here as well? That was because if we put the same variable over here and the same variable over here, the prologue will interpret that as you are writing, you want this variable to be the same in reads predicate as well as writes predicate, which means if you can I'm just getting the notification that participants can now see your screen. I wasn't sure if it was not visible back then. Anyways, so X reads Y, and if I write Y here, alright, so I'm continuing. Ali Haider. So X reads Y, and if I write Y here, so it will be read as by prologue that X reads Y and X writes Y as well, which means Y would be the same. What I'm trying to say here, जो कि मैंने कल भी बात की थी, कि if I assign some value to X, if I take some value of X, all of the X's before the full stop, before the terminator, would be treated as the same X. For example, if I ask Aisha is a master, so if Aisha is a master I'm asking, then X means Aisha, then over here X means Aisha, here X means Aisha as well, and all of the X's that come before this full stop would also mean Aisha. Similarly, if for example reads Aisha something must be true, so अगर reads Aisha something must be true and that something is allotted newspaper, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है कि भाई रीड्स आयशा से बुक्स, रीड्स आयशा बुक्स. सो अगर मैं यहाँ पर बुक्स ले लेता हूँ वाई की वैल्यू, बिकॉज रीड्स आयशा बुक्स बिकम्स ट्रू, मैं ऑब्वियसली यहाँ पर कोई वाई की ऐसी वैल्यू नहीं उठाऊंगा जो कि फॉल्स करे, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं फॉल्स के लिए वैल्यू उठा रहा हूँ इसका मतलब है मैं इसको फॉल्स कर रहा हूँ.
बिकॉज वी हैव सेड कि दिस कॉमा मीन्स एंड में आपको ये पता है कि होता है कि एक भी अगर सिचुएशन, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो पूरी की पूरी सिचुएशन फॉल्स हो जाती है. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट फॉल्स, आई एम ट्राइंग टू पुट अ वैल्यू ऑफ वाई हेयर दैट मेक्स दिस प्रेडिकेट ट्रू. सो लेट्स से कि मैं आयशा के साथ बुक्स को रख के यहाँ पर ट्रू करता हूँ. सो कंसिडर इफ देयर वाज अ वाई हेयर, देन इफ देयर इज अ बुक्स, देन इस वाई का मतलब भी बुक्स हो जाएगा, ऑल्दो इट्स सेड. तो इस वजह से हमने यहाँ पर z रखा कि इट कैन रीड समथिंग एंड राइट समथिंग डिफरेंट एज वेल, but the person should be the same who is a master. Aisha, Aisha, Aisha. And this can be different, this can be same as well, but this can be different as well. So this is why I have written two different variables here, y and z. I have not used the same variable here. If I use the same variable here, for example, if I write y here, then that means then x is a master. If x writes something, x reads something and x writes that same something, this same something. But I am not imposing this condition on here. I am just saying that it should be able to write something, it should be able to read something, then I can say that x is a master. Otherwise I will not say that x is a master. So like I said that this column means and, so obviously this implies that there should be a sentence, there should be a symbol on which it should mean or, and that symbol is the semicolon. जो सेमीकॉलन है दैट वुड बी ट्रीटेड एज, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कॉमा की जगह सेमीकॉलन लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि या तो वो कुछ रीड कर सकता हो या वो कुछ राइट कर सकता हो, तो कोई भी एक केस हो जाएगा तो एक्स इज अ मास्टर. बट हमने यहाँ पर एंड लिखा बिकॉज वी वांट द पर्सन टू बी एबल टू रीड एंड राइट एज वेल. सो अब मैं कुछ और यहाँ पर नॉलेज बेस बना रहा हूँ. फॉर एग्जांपल चलें इसी को लेकर चलते हैं. या लेट मी जस्ट चेंज समथिंग, बेयर विद मी. मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ साथ साथ चीज़ें, एंड यू शुड कीप अ वॉच कि मैं क्या चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन कि एक्चुअली और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. अच्छा, देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल कि आपने रूल्स बाद में लिखने हैं और फैक्ट्स पहले लिखने हैं. फैक्ट्स इज समथिंग जिसमें आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एंड रूल्स आर समथिंग जिसमें आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो और कंडीशंस का इस्तेमाल कर रहे हो. तो आप यहाँ पर कंडीशन और वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इट मीन्स दिस इज़ अ रूल, दिस इज़ अ रूल. यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ना कोई कंडीशन है, इट इज़ जस्ट अ फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट, दीज ऑल आर फैक्ट्स. यहाँ पर कोई वेरिएबल या कंडीशन, इफ़ की कोई कंडीशन नहीं है. दीज आर रूल्स बिकॉज इट यूजेज द इफ़ कंडीशन एज वेल एज सम वेरिएबल्स. सो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने रूल्स बाद में लिखने हैं और फैक्ट्स पहले लिखने हैं. यू कैन राइट द रूल्स फर्स्ट एंड फैक्ट्स आफ्टरवर्ड्स, एंड यू कैन राइट सम रूल्स इन बिटवीन सम फैक्ट्स, you can write some facts in between some rules. It's up to you. It's not a hard and fast rule कि आपने पहले ये लिखना है या बाद में ये लिखना है. सो इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. मैं कुछ और फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इस कोड के अंदर. कुछ थोड़े से फैक्ट्स इसमें ऐड करेंगे और उन फैक्ट्स की बुनियाद पर कुछ रूल्स भी हम लिखेंगे. बट इट शुड बी अ कन्वेंशन दैट यू शुड राइट फैक्ट्स फर्स्ट एंड देन रूल्स आफ्टर द फैक्ट्स, बिकॉज रूल्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स. अगर आप कह रहे हैं एक्स इज एजुकेटेड इफ समथिंग, वो जो समथिंग है इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी सम फैक्ट. ठीक है, इट इज़ मोस्टली गोइंग टू बी सम फैक्ट. सो यहाँ पर आप वो चीज़ लिखेंगे जो कि आपको पहले से पता हो. बेशक आप उसको लिखें बाद में, लेकिन अगर आपको पता वो पहले से होनी है तो इट्स बेटर कि आप उसको पहले ही लिखते हैं. तो इट्स बेटर कि आप जो फैक्ट यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं कंडीशन में वो इससे पहले डिफ़ाइन हो चुका हो. ऑल्दो आप उसके बाद भी लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप उससे पहले लिखते हैं ताकि आपको जहन में हो कि आप एक्चुअली जो लिखना चाह रहे हैं उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं. So let me write some other rules, facts as well, and then based on those facts we will be writing some rules with the help of the attending students as well.
So for example, these are some facts that I have written. फॉर एग्जाम्पल कैन यू टेल मी कि इसका मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में अगर मैं इंटरप्रेट करूँ तो इसका मतलब क्या होगा? जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है, कैन यू राइट अ मीनिंगफुल इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस व्हाट दिस मीन्स लाइक अली जाहिद? Yes, exactly. Ali Hadar is saying that it means that Ali likes Zahid. Can it not mean now? It should be a complicated decision for you. At least it should be a complicated debate for us. Can we not understand it like Zahid likes Ali? क्या मैं इसको ऐसा नहीं पढ़ सकता कि Zahid likes Ali? Just a question of yes or no. What do you think? Can I read it as Zahid likes Ali? Why not? What is stopping me from doing that? Zahid likes Ali. Like I said, this is going to be a little complicated discussion and debate for us. Why do you think I can't read it as Zahid likes Ali? Okay, you are saying that it's not likely that Zahid likes Ali as well. My question is कि देखें, आपने इसको कहा अली लाइक्स जाहिद, जबकि प्रोलॉग के अंदर देयर इज नो सच थिंग एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. इट्स जस्ट प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट्स. लाइक्स इज द प्रेडिकेट और उसको अली और जाहिद पे काम कर रहा है, दैट्स इट. लेकिन हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर इसको समझ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं अली लाइक्स जाहिद, तो क्यों ना मैं इसको जाहिद लाइक्स अली कह लूँ? क्योंकि हमने समझना ही तो है. इसमें ऐसा तो नहीं है कि प्रोलॉग इसमें अली को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है और जाहिद को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, या जाहिद को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है और अली को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट. माय पॉइंट इज कि if you're writing let's say Ali like Zahid, तो आई कैन एक और जुमला में लिखता हूँ, एक और प्रेडिकेट में लिखता हूँ, और देन यू कैन डिसाइड कि उसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है. ये दो जुमले हैं अब हमारे पास. कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू sentences, between these two predicates, facts? सबसे पहले तो चलें, एक का तो बता चुके हैं आपके अली लाइक जाहिद है पहले का मतलब. ओके, या the message is there. First one is Ali likes Zahid. Second one is Ali is liked by Zahid, which means Zahid likes Ali. Okay, चलें अब मैं दो और sentences लिखता हूँ, and let's try to make it a little more complicated. अब ये चार चीज़ें हो गई हैं. अब मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ कि आप इसका मतलब बताएंगे इन सब का मतलब क्या है. लेट्स टेक 2 मिनट्स. आप खुद इसको समझ लें अगर तो ज़्यादा बेहतर है, या खुद क्वेश्चन करें खुद से कि एक्चुअली यहाँ पर क्या बात हो रही है.
किस पॉइंट की तरफ हम आना चाह रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फोर प्रेडिकेट्स, दिस फोर facts on your own. Take a few minutes, take a couple of minutes, and then I will come back and will teach you about this. But first of all, you need to have some understandings of the differences between these four on yourself. So let's understand it very carefully. Likes का कोई मतलब नहीं है प्रोलॉग के अंदर. It's just in our English language that it means something. Liked by का कोई मतलब नहीं है प्रोलॉग में. It is just our understanding. So for example, if I say that, इस जुमले से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये चलें इसी से स्टार्ट करते हैं. अगर मैं ये कहता हूँ कि इस जुमले का मतलब है, दिस इज जस्ट अ कमेंट, ऑल्दो इट्स नॉट हाउ यू राइट अ कमेंट इन प्रोलॉग, बट लेट मी राइट इट, लेट मी गिव द प्रिविलेज टू डू इट. फॉर एग्जाम्पल, इस जुमले का मतलब है अली लाइक्स जाहिद. इस जुमले का मतलब है अली लाइक्स जाहिद. सो विदाउट, अब देखें इस जुमले का मतलब हमने ये समझा है अली लाइक्स जाहिद. अगर मैं चाहूं तो मैं इस जुमले का मतलब ये ले सकता हूं कि जाहिद लाइक्स अली. देयर इज नो power that is stopping me from understanding this sentence as Zahid likes Ali, because it is a sentence of English language. Prologue ने क्या समझा है as a computer, उसने ये समझा है there is a predicate which is spelled as LIKES. उसमें पहला आर्ग्यूमेंट अली है और दूसरा आर्ग्यूमेंट जाहिद है. उसे ये नहीं पता कि लाइक्स का मतलब क्या है, कौन किसको लाइक करता है और लाइक करने का मतलब होता क्या है. उसे सिर्फ ये पता है कि एक प्रेडिकेट है, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट अगर अली है और दूसरा जाहिद है तो दिस इज अ ट्रू थिंग. अगर एक प्रेडिकेट लाइक्स है और उसमें पहला आर्ग्यूमेंट जाहिद और दूसरा अली हो जाता है तो वो कहेगा दिस इज नॉट ट्रू. फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ इसी एक स्टेटमेंट की बात करता हूं तो नाउ, अब ये जो सेंटेंस है इसको मैं कहता हूं, अगेन वही चीज जो ऊपर मैंने लिखी है. लेट्स से कि मैं इसको इंटरप्रेट करता हूं ऐसे कि अली is liked by Zahid, is liked by Zahid. Now again it is my understanding. I am saying that I will interpret this liked by predicate where the first element is Ali and the second argument is Zahid as Ali is liked by Zahid. But there is no power on earth that can stop me from understanding it like Zahid is liked by Ali, because it is the first sentence that I am writing. But the major question is that if I understand this sentence as Ali likes Zahid,
सो वेरेवर आई राइट दिस प्रेडिकेट ऑफ लाइक्स, उसमें हमेशा मैं पहले आर्ग्यूमेंट को एज अ सब्जेक्ट रखूंगा और दूसरे आर्ग्यूमेंट को एज एन ऑब्जेक्ट रखूंगा। ये मुझे बस बात समझनी है। अगर मैं इसको कह रहा हूं कि अली लाइक्स जाहिद, तो फिर मैं इसको कहूंगा अहमद लाइक्स अली, फिर मैं इसको कहूंगा जाहिद लाइक्स अली, फिर मैं इसको कहूंगा अली लाइक्स दानियाल, फिर मैं इसको कहूंगा आयशा लाइक्स यासीन। अगर मैं इसको कह देता हूं अली लाइक्स जाहिद, तो अगेन इट्स नॉट अ प्रोलॉग थिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन प्रोग्राम। ये आपने खुद समझना है। ये नहीं है कि आप इसको कहते हैं कि भाई इसका मतलब है अली लाइक्स जाहिद और इसका मतलब है कि अली लाइक्स यासीन। नो, इसका मतलब अब यासीन लाइक्स अली होगा, बिकॉज यू हैव सेड के लाइक। अगर आपने कहना है कि नहीं इसका मतलब होगा अली लाइक्स यासीन और इसका मतलब होगा अली लाइक्स जाहिद, तो फिर या तो इसके प्रेडिकेट को चेंज करो या इसके प्रेडिकेट को चेंज करो। क्योंकि अगर ये सेम प्रेडिकेट हैं तो इसको आप इंटरप्रेट भी सेम तरीके से ही करोगे कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लाइक्स सेकंड आर्ग्यूमेंट। और यहां पर अगर आप कह रहे हो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज लाइक्ड बाय सेकंड आर्ग्यूमेंट, तो हमेशा ऐसा ही होगा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज लाइक्ड बाय सेकंड आर्ग्यूमेंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस अगेन फ्रॉम अ सेकंड पर्सपेक्टिव कि लाइक्ड बाय का भी कोई मतलब नहीं है प्रोलॉग में, जस्ट लाइक लाइक्स का कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट अवर ऑन अंडरस्टैंडिंग। ना लाइक्स का कोई मतलब है ना लाइक्ड बाय का कोई मतलब है। इसका मतलब है कि प्रोलॉग को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि लाइक्स में अगर जाहिद पहले था तो लाइक्ड बाय में जाहिद पहले आने का मतलब क्या है। उसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर लाइक्ड बाय का प्रेडिकेट है और जाहिद पहले है और अली बाद में है तो ये बात ट्रू है। अगर लाइक्ड बाय का प्रेडिकेट है और अली पहले है और जाहिद बाद में है तो ये बात फॉल्स है। अगर लेट से मैं इसको इग्नोर करता हूँ, सिर्फ ये चीज़ है। सो आई एम टेलिंग दिस विद वेरी वेरी नपे तुले वर्ड्स को मैं यूज़ करके इस बात को बता रहा हूँ आपको कि देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लाइक्स एंड लाइक्ड बाय और जाहिद और अली in prologue. The prologue only knows what is the name of the predicate, what is the first argument of the predicate and what is the second argument of the predicate, या अगर थर्ड फोर्थ है तो वो भी। सो प्रोलॉग ने सिर्फ ये देखना है कि आपने किस आर्ग्यूमेंट किस प्रेडिकेट के बारे में कहा है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहा है, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या कहा है, दैट्स इट। उसको नहीं पता कि इसका नाम इसका मतलब अली लाइक्स जाहिद है या जाहिद लाइक्स अली है। उसको ये भी नहीं पता कि इसका मतलब अली लाइक्स टीवी एंड जाहिद लाइक्स टीवी है या जाहिद लाइक्स टीवी एंड अली लाइक्स मूवीज है। इसको सिर्फ ये पता है कि लाइक्स अली अहमद है तो वो ट्रू है, सॉरी अली जाहिद है तो वो ट्रू है। इसके अलावा और कोई चीज़ ट्रू नहीं है। लेट्स सपोज कि अगर इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ तो। सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ जो कि मैंने एडिशनल इस चीज़ को समझाने के लिए लिखी थी। अब सिर्फ एक प्रेडिकेट मैंने इंट्रोड्यूस करवाया एंड दैट इज ऑफ लाइक्स। लेकिन अगर हम खुद समझ रहे हैं तो हम अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कहते हैं कि यार इसका मतलब ये होगा, जिस तरह इसका मतलब मैंने ये कहा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अली लाइक्स जाहिद, क्योंकि मैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को पार्स कर सकता हूँ ना, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, मैं उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेना चाहूँगा आगे। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अली लाइक्स जाहिद इज ट्रू, तो इसका मतलब है अहमद लाइक्स अली इज ट्रू। अब इसको मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दानियाल लाइक्स अली, इसको मैं कहूँगा अली लाइक्स दानियाल, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम या ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि जब ऐसी चीज़ लिखी हुई है उसका मतलब है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लाइक्स द सेकंड आर्ग्यूमेंट, यासीन लाइक्स अली, जाहिद लाइक्स अली एंड सो ऑन। अब देखें ये रिपीटेशन कर दी है मैंने, लाइक्स जाहिद अली यहाँ पर भी लिखा है, लाइक्स जाहिद अली यहाँ पर, तो मैं इसमें से एक को मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। रिपीटेशन नहीं हो वरना मसला आ जाएगा आपके प्रोग्राम में। ऑल्दो आप लिख सकते हैं बट वो वार्निंग आ जाएगी और फिर वो एक ही चीज़ को दो बार प्रोसेस कर रहा होगा, फिर आप जवाब में ये सोच रहे होंगे यार ये दो दफ़ा क्यों बता रहा। सो एनीवेज यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है या क्या चीज़ समझ में नहीं आई? काइंडली आस्क मी। ऑलराइट, इट्स गुड कि इट्स क्लियर एज ऑफ नाउ, बट ऑब्वियसली अब देखें ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सिंटेक्स का ख्याल रखना पड़ रहा है। पिछली 3-4 लैब से हमने सिर्फ यही काम किया है कि आपने प्रेडिकेट किस तरह लिखना है, फैक्ट किस तरह लिखना है। तो अगर आप इसमें आधा घंटा भी दे दें ना अपना निकाल के, थोड़े से प्रैक्टिस कर लें इसको, और ना ही ये कोई ऐसा क्या कह लें इसको हैवी सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कहेंगे यार इंस्टॉलेशन कौन करे मशीन पे। बड़ा छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कोई 13-14 MB का सॉफ्टवेयर है, आई थिंक 40 MB का सॉफ्टवेयर है। इट इंस्टॉल्स वेरी क्विकली, इट रन्स वेरी ईजिली, कोई कंपाइलेशन का एरर नहीं, टाइम नहीं लगता, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है कि आपको हर चीज़ का ध्यान देना पड़े।
So it's a very quick thing. Just take out half an hour of your time and understand these things. थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें ताकि अगली चीज़ों में आपको चीज़ें आसान हो जाएं. सो ओके, नाउ कमिंग बैक. सो अभी तक अगर आपको बात क्लियर है तो यू नो कि लाइक्स का प्रेडिकेट सिर्फ हमने डिफाइन किया है और उसके अगेंस्ट, यानी कि अगर मैं अब इस प्रोग्राम को अब चलाकर नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर चलाकर देखूँ और मैं उससे पूछूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ और आप मुझे जवाब देते जाएंगे ट्रू या फॉल्स में, या जो भी जवाब आ सकता है. मैं एक क्यूरी लिखता हूँ. You are my compiler, you have this whole knowledge base, and you are going to tell me कि if this is the query ऐसे लिखते हैं ना प्रोलॉग में, खोला नहीं है मैंने. अगर मैं ये लिखता हूँ तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा जवाब? टेल मी. ठीक है, बड़ा सिंपल, ट्रू आएगा क्योंकि ये चीज़ हमारी नॉलेज बेस में है. लेट्स से कि मैं अब पूछता हूँ ये चीज़, अब बताएं जवाब सही है या गलत है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है इसका जवाब? फॉल्स है क्योंकि लाइक से मत है ही नहीं. अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसका जवाब क्या होगा? false. Leader is saying false. That is not the correct answer. इसका जवाब क्या होगा? Now understand, मैं दोबारा आपको ये बात बता देता हूँ. X is a variable. थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ आपको. X is a variable because X is written in a capital letters. अपर केस अल्फ़ाबेट में मैंने लिखा है X को. X is a variable. So इसका जवाब क्या होगा? Think again and tell me. What does likes Ali X mean? यही तो सर्च करना होगा. यही तो आप पूछ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी. आई एम सेइंग कि यही है, जब आप प्रोलॉग के अंदर रन करके वेरिएबल दे देते हैं ना एज अ क्यूरी, तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि यू आर आस्किंग कि प्रोलॉग से आप ये पूछ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू में क्या रखूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. एक्स की वैल्यू में क्या रखूं कि ये चीज़ ट्रू हो जाए. तो प्रोलॉग विल लुक फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक्स दिस प्रेडिकेट ट्रू. So can you tell me what should be the value of x, या values of x which makes this predicate true? Yes, keep going. Yes, keep going. Zahid, Danial, and what? और कुछ? यस गुड, यही दो वैल्यूज़ हैं. तो जब ये पूछा जाएगा तो इसका जवाब जो है प्रोलॉग में इस तरह से आता है कि आप जैसे ही इस पर एंटर करेंगे तो लिखा हुआ आएगा x इक्वल टू जाहिद, दैट्स इट. और फिर आप सेमी कॉलन का बटन जब प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ आएगा x इक्वल टू दानियाल, और फिर उसके बाद सेमी कॉलन का बटन आप प्रेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि दोबारा आपके सामने ये चीज़ लिखी हुई आ जाएगी, विच मीन्स इट विल बी आस्किंग यू फॉर अनदर क्यूरी रादर देन एग्जीक्यूटिंग द आंसर ऑफ द सेम क्यूरी. ठीक है, सो यही दोनों हैं. यू आर राइट कि अच्छा, व्हाट अबाउट अगर मैं ये लिखता हूँ कि यहाँ पर y लिख देता हूँ, यहाँ पर x लिख देता हूँ, अब क्या जवाब आएगा ज़रा बताएं.
यस, फिर सारे नेम्स आ जाएंगे, यानी पहला जवाब आएगा x इक्वल टू अली एंड सॉरी x इक्वल टू अहमद एंड y इक्वल टू अली। फिर आप सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो जवाब आएगा x इक्वल टू अली एंड y इक्वल टू जाहिद। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ हम रन करके भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक रिपीट हो जाए इस चीज़ का, और फिर हम इसके रूल के ऊपर आते हैं कि इसका रूल क्या होगा। सो लेट मी रन इट। इसको भी मिटा देता हूँ बिकॉज कमेंट्स आर नॉट रिटन लाइक दिस। मैंने इसको सेव किया, नाउ आई एम रनिंग इट। ठीक है, ये मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो भी साथ साथ दिखा देता हूँ मैं आपको कि भाई ये जवाब आ रहे हैं। देखें, लाइक्स सबसे पहले अहमद अली आया, अब मैं सेमीकोलन प्रेस कर रहा हूँ, रिमेंबर फॉर द नेक्स्ट आंसर। अली और जाहिद आया, देन अली एंड दानियाल, देन आयशा एंड यासीन, देन यासीन एंड अली, देन जाहिद एंड अली, एंड देन सेमीकोलन के बटन प्रेस करने की जगह नहीं है मेरे पास, इट्स आस्किंग फॉर अनदर क्यूरी विच मीन्स के दीज आर द होल पेयर्स विच लाइक्स ईच अदर। अच्छा, अब मैं एक रूल लिख रहा हूँ और उस रूल की एक्सटेंशन आप खुद लिखेंगे। जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम राइटिंग एंड देन वी विल डिबेट ऑन इट। चलें जी, एक ये रूल मैंने बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस रूल, व्हाट इट्स सेइंग, एंड जस्ट टेल मी कि इफ इट्स अ क्यूरी जो कि मैं रन करता हूं तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका क्या जवाब आएगा। अंडरस्टैंड दिस, टेक ए टाइम एंड टेल मी कि इसका जवाब क्या आएगा। जस्ट वन आंसर, x इक्वल्स टू अली, और कुछ नहीं आएगा। और कुछ नहीं आएगा, यस और नो, जस्ट x इक्वल टू ओनली अली। ठीक है, आई थिंक यस के लाइक्स अहमद अली एंड देन या। सो यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रूल्स, राइट। तो हमने रूल ये लिखा कि एक फ्रेंड एक्स वाई ट्रू होगा। रिमेंबर, अभी तक मैंने इंग्लिश में नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि फ्रेंड एक्स वाई ट्रू होगा अगर लाइक्स एक्स वाई ट्रू है तो यानी कि पहला आर्गुमेंट कोई भी हो, दूसरा आर्गुमेंट कोई भी हो, ये ट्रू तब होगा फ्रेंड के साथ अगर लाइक्स में पहला आर्गुमेंट वही और दूसरा आर्गुमेंट वही हो। तो अगर पहला आर्गुमेंट यहाँ x है तो लाइक्स में भी पहला x होना चाहिए, पहला आर्गुमेंट यहाँ y है तो लाइक्स में भी दूसरा y होना चाहिए, सॉरी। तो अगर लाइक्स एक्स वाई ट्रू हो जाएगा तो फिर फ्रेंड एक्स वाई भी ट्रू होगा। तो मैंने पूछा कि भाई अहमद, फ्रेंड अहमद के साथ क्या आएगा जो ट्रू हो जाए,
तो आपने देखा कि भाई लाइक्स में अहमद के साथ क्या आता है तो ट्रू होता है, और आपने कहा अली आता है तो दिस इज वाई फ्रेंड अहमद अली जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि इस जिस तरह इस सेंटेंस का मतलब पे हमने काफ़ी बहस की कि इसका मतलब है जाहिद लाइक्स अली, जो कि हम कह रहे हैं, हो सकता है अली लाइक्स जाहिद हो, इट डजंट मैटर। प्रोलॉग तो उसमें से फर्स्ट आर्गुमेंट और सेकंड आर्गुमेंट की तरह उसको डिवाइड कर रहा है। सो कैन यू टेल मी द इंग्लिश सेंटेंस ऑफ दिस सेलेक्टेड प्रेडिकेट, फ्रेंड एक्स वाई का इंग्लिश में क्या मतलब होगा? ओके, फुरकान कह रहे हैं कि अली इज अ फ्रेंड ऑफ अहमद, इसका मतलब ये होगा। सॉरी, कहाँ गया? व्हाट हैपेंड? दिस थिंग, या अली इज अ फ्रेंड ऑफ अहमद, और अली हैदर ये कह रहे हैं कि एक्स लाइक्स वाई। ठीक है, हाँ, या दिस इज अ वेरी एक्यूरेट आंसर। सो एक्स लाइक्स वाई, और बट नो अली हैदर, आपने एक्स वाई को तो यूज़ कर लिया, लेकिन हमने जो सेलेक्ट किया है वो फ्रेंड के प्रेडिकेट को किया है। सो इसका इंग्लिश में मतलब क्या होगा? जिस तरह इसका इंग्लिश में मतलब मैं कहता हूँ कि एक्स इज़ अ मास्टर, इसका मैं कहता हूँ मतलब टुडे इज़ फ्राइडे, इसका मैं कहता हूँ एलेक्स कैन रीड, इसका मैं मतलब कहता हूँ आयशा राइट्स न्यूज़पेपर, इसका मैं मतलब कहता हूँ जाहिद लाइक्स अली। तो इसका मतलब क्या होगा? X is a friend of Y, right? Now this is a very accurate answer, that X is a friend of Y. Now understand this, ये आप कह रहे हैं कि इसका मतलब X is a friend of Y है। Let's say कि मैं कहता हूँ कि इसका मतलब है Y is a friend of X, मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती कि ऐसा बोलूँ या ना बोलूँ। Y is a friend of X, I will say okay, Y is a friend of X भी true है, क्योंकि मैंने कहीं लिखा नहीं है कि इसका मतलब इंग्लिश में क्या है। It's just about the programmer, how does he or she interprets it. आप इसको किस तरह समझ कर लिखते हैं? अगर आप इसको जिस तरह ऐसे समझें कि अगर मैं सी में एक वेरिएबल बनाता हूँ ना, बड़ा सिंपल सी एग्जांपल है, समझने ज़रा गौर से। सी में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या नाम रखा मैंने वेरिएबल का? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और उसके अंदर मैं सेव कर रहा हूँ नंबर ऑफ टीचर्स। क्या कुछ कोई मुझे रोक सकता है ऐसा करने से? नहीं रोक सकता, बिकॉज उसको सी को नहीं पता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है। उसने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है, उसमें आप चाहे नंबर ऑफ टीचर्स स्टोर करें, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज स्टोर करें, नंबर ऑफ कोर्सेज स्टोर करें, नो वन कैन स्टॉप मी। इट्स जस्ट अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे एक कोर्स का, एक वेरिएबल का नाम, तो आप चाहेंगे कि उसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही सेव करें। सो एग्जैक्टली दिस सिचुएशन इज हेयर कि फ्रेंड एक्स वाई का मतलब लगता है हमें कि एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ वाई, लेकिन मैं इसको वाई इज अ फ्रेंड ऑफ एक्स भी कह सकता हूँ, मैं इसको z इज अ फ्रेंड ऑफ x भी कह सकता हूँ, लेट्स से। बट इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी वेज कैन यू इंटरप्रेट इट, इट्स अबाउट व्हाट इज द राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा इस प्रोग्राम को आगे समझना। सो अगर मैं हेल्पफुल की तरफ जाता हूँ तो आई विल अंडरस्टैंड इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस, जिस तरह अली हैदर या फुरकान जिस तरह से कह रहे हैं कि आई विल इंटरप्रेट इट एज x इज अ फ्रेंड ऑफ y। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जहन में थोड़ा सा एक बन चुका है कि पहले आर्ग्यूमेंट को बनाएं, फिर उसके बाद प्रेडिकेट कहें, और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है दैट वुड बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ वाई। ठीक है, अगेन दिस इज समथिंग जो कि अच्छा, इसको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं करवा सकता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको कह रहे हैं कि एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ वाई, जिस तरह से मैंने कहा कि मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि वाई इज अ फ्रेंड ऑफ एक्स, लेकिन मैं इसको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी कह सकता हूँ, और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि x एंड y आर फ्रेंड्स। वी आर गेटिंग इनटू अ वेरी ट्रिकी टेरिटरी, सो बेयर विद मी। आई कैन इंटरप्रेट इट एज x एंड y आर फ्रेंड्स एंड नो वन विल बी एबल टू स्टॉप मी, बट ऑन हियर it doesn't sound like very unconventional, it sounds right, but it sounds a little conflicted as well. अगर मैं ये कहता हूं कि x is a friend of y, it is a different sentence,
और अगर मैं कहता हूँ x एंड y आर फ्रेंड्स तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, but I can use this whole selected predicate to interpret it as much as I like. But अगर मैं अब इसकी कंडीशंस पर आता हूँ, अब मैं ह्यूमनली समझ रहा हूँ कि एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x इज़ अ फ्रेंड ऑफ अली। ये चलें कंडीशन पर आते हैं पहले। अगर मैं इस कंडीशन को इंटरप्रेट करूँ तो इसका मतलब क्या है, x लाइक्स y। क्यों कह रहा हूँ मैं इसको x लाइक y? क्योंकि मैं पहले जब लिख रहा था तो मैंने इसको यही कहा था कि अहमद लाइक्स अली, अली लाइक्स साहिद, अली लाइक्स दानियाल। मैंने ये नहीं कहा था दानियाल लाइक्स अली। क्योंकि मैं इसको पहले से प्रेडिकेट को डिफाइन करके आ चुका हूँ अपने जहन में कि इसका मतलब क्या है, तो आई विल इंटरप्रेट इट एज x लाइक्स y। सो अब मैं अपने ह्यूमनली सिनेरियो में सोचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ x लाइक्स y, अगर x y को लाइक करता है तो क्या x y का फ्रेंड हुआ या y x का फ्रेंड हुआ या दोनों आपस में फ्रेंड्स हुए? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसका जवाब दें मुझे। अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को जहन में रखता हूँ और मैं कहता हूँ यार x y को पसंद करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x y का फ्रेंड है या y x का फ्रेंड है या x और y दोनों फ्रेंड्स हैं? Right? It makes sense that x is a friend of y. It doesn't make sense that y is a friend of x. क्योंकि अगर x y को like करता है, it means x is more passionate about this friendship, y is not. Y might not have liked x. Y को हो सकता है x पसंद ना हो, तो y is not a friend of x. And we have seen these kind of relationships working on in our daily lives. Okay, I am sincere with someone and someone is not sincere with me. So I will say that I am a friend of his, but he is not an actual friend of mine. Why? Because I like that person. I am willing to do some work for him, but that person doesn't like me. That person does not come on my whatever parties or whatever, and that is why I will say that that is not a friend of mine, but I am a friend of his. So this is exactly the situation, that if I am saying that x likes y, then I should be able to interpret it as x as a friend of y. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, तो उस सिचुएशन में मैं कह सकता हूँ कि x एंड y आर फ्रेंड्स। अगर x y को लाइक करता है और y x को लाइक करता है, तो मैं कह सकता हूँ कि x एंड y आर फ्रेंड्स। सो कैन यू टेल मी कि उसका रूल कैसे बनेगा? नॉट राइट नाउ इफ यू कांट, वी आर अबाउट टू एंड दिस लैब। आप चाहें तो इसको बाद में भी आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट लैब के अंदर। मंडे को हमारी जब लैब होगी, प्रॉबेबली हम क्लास में एक क्विज़ भी लेंगे टीम्स के ऊपर। आपने जल्द से जल्द इनरोल हो जाना है ऑल्सो ऑन CMS, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड पार्टिसिपेट इन द क्विज़। द टास्क फॉर यू आफ्टर दिस लैब इज़ दैट कि अगर मैं एक ऐसा रूल बनाना चाहूँ कि मैं ये कहूँ कि भाई अगर x y को लाइक करे और y x को भी लाइक करे, तो वो दोनों फ्रेंड्स हैं। x y का फ्रेंड नहीं या y x का फ्रेंड नहीं सिर्फ, बल्कि दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हो जाएंगे अगर दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो दिस इज़ योर लैब टास्क। यू विल हैव टू मेक अ रूल और 2 rules और हाउ मेनी रूल्स यू वुड लाइक टू मेक of that, and we will work on that in our next lab. Thank you very much. I'm ending this lab now. Hopefully we will meet on Monday. I will communicate to you the timing of the class and lab, and probably we will have a quiz on that MS Teams as well. So understand that you will have to move to MS Teams. We will be moving from Zoom to Teams before Monday hopefully. So see you on Monday inshallah.